Hello everyone, and this is Navdeep and welcome to my channel. You must all be aware of, after reading the caption, what is this video all about. So here I would like to share my experience, how I scored 8.5 band, that is 84 out of 90, that too in a very first attempt in the PT exam, that is Pearson Test of English, also just by doing the self-study. Yes, I have did self-study, I didn't take any coaching from anywhere. So here I would like to share my experience, how I started, from where I prepared and what strategies I used to give this exam. I will discuss all the questions, all the modules serial wise, right? So here I would like to start from the speaking section. Firstly, I will share my experience that how I started. When I started planning for the giving this PT exam, I was not aware to where to start and from where to do the practice. So firstly, I googled. From there, I came to know about different websites. Also, I read some blogs. And then I came to know that there are some websites like PT Study, App Uni, PT Tutorial, and all. So I opened the PT Study, and I made account from in that website, and I started doing the practice. As I always, I was aware earlier about this thing that PT consists of 4 modules, same as IELTS, because I have also given IELTS both in academic and also in the general. So I made my account in the PT Study and I started doing the practice. Starting from the speaking section, here I would like to talk. The speaking section consists of the read aloud first. When we appear for the exam, we get the read aloud. So for the read aloud, what I used to do, as we all know that we get 40 seconds, हमें 40 seconds मिलते हैं read aloud को जो है analyze करने के. तो मैं क्या करती थी कि जैसे ही read aloud हमारे appear होता है स्क्रीन पर, मैं फटाफट उसको पढ़ती हूँ. 40 सेकंड में उसे पढ़ती थी और मैं देखती थी उसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जो मुझे लगता है कि मुझे बहुत डिफिकल्ट होगा प्रोनाउंस करने में, बिकॉज आप सबको पता है कि रीड अलाउड जो है में जो है प्रोनाउंसिएशन काफी मैटर करता था. तो मैं उन वर्ड पे, मान लो मुझे कोई ऐसा वर्ड होता था कि जो मुझे बहुत टफ लगता हो, जैसे परसुएसिवली हो गया, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, तो मैं परसुएसिवली को क्या करती थी, 5 बार अपने दिमाग में पढ़ती थी, परसुएसिवली परसुएसिवली परसुएसिवली, राइट. और जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई मैं उसे बोल देती थी. इससे मुझे क्या फायदा होता था कि जब हमें पर्टिकुलर हम किसी वर्ड पे स्ट्रेस करते हैं, उसको बार बार अपने दिमाग में पढ़ते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाता है. ठीक है, उसकी जो है एक इमेज जो है वो हमारे दिमाग में रहती है, और जब हम उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जब हम उसे बोल रहे हैं, तो हम इजीली उसको बोल पाते हैं. ये तो था रीड अलाउड. और मोस्टली रीड अलाउड की सेकंड बात ये भी है कि रीड अलाउड जो है हमें 44 मार्क्स का होता है, और ये जो है हमें हमारे मार्क्स जो है डिवाइड करता है 2 सेक्शंस में, रीडिंग और स्पीकिंग में. क्यों? क्योंकि हमें पहले रीड करना है और फिर हमें उसे बोलना है. तो 44 मार्क्स जो थे वो डिवाइड होते हैं 22 इन द रीडिंग एंड 22 इन द स्पीकिंग सेक्शन. Then comes the repeat sentences that consist of the highest distribution of marks, that is 52. Most important in PT. Actually, they are the bottleneck of the PT. Repeat sentences and the write from dictations. Also, repeat sentences further divided their marks into 2 sections, that is listening and speaking. So for the repeat sentences, I started doing the practice. I daily around 2 to 300 I used to do repeat sentences. Firstly, they appear very tough to me. मुझे लगा कि ये बहुत टफ है, मुझसे हो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि रिपीट सेंटेंसेस जो 8 to 9 वर्ड्स के होते थे वो तो मैं इजीली मेमोराइज कर लेती थी, लेकिन 10 to 14 वर्ड्स के थे वो मुझसे स्टार्टिंग में नहीं मेमोराइज हुए. सेम फॉर द राइट फ्रॉम डिक्टेशंस इन द लिसनिंग सेक्शन. तो मैंने उस चीज में एक बात नोट की कि जो ये रिपीट सेंटेंसेस और जो हमारी WFD हैं, ये बेसिकली जो है हमारी लिसनिंग एबिलिटी पे डिपेंड है. जैसे अगर तो ये रिपीट सेंटेंसेस और WFD हमारी हिंदी में हो या पंजाबी में हो या आपकी या किसी भी कोई अदर नेटिव लैंग्वेज में हो, तो वो इजीली हम कर लेंगे. लेकिन हम, क्योंकि हम डेली जो है हिंदी और पंजाबी या और कोई लैंग्वेज जो हम डेली अपने ऑल अराउंड जो बोल रहे हैं, हम वही सुनते हैं. लेकिन जो हमारे रिपीट सेंटेंसेस और WFD ये तो है तो इंग्लिश में, और हम वी आर नॉट इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग टू इंग्लिश और लिसनिंग टू इंग्लिश एवरी डे, राइट. सो व्हाट आई डिसाइडेड, so I decided to improve my listening ability first,
and then practice for this repeat sentences and the WFDs. So what I did was I started listening to the English podcast BBC Daily. I used to listen around 3 to 4 BBCs daily just by plugging into my AirPods. As you all know that in the iPhones we have a inbuilt application of podcast. So I used to play podcast from there, plug in my AirPods, and while doing my household chores or while doing my other stuff, I used to listen to the podcast. After 1 week, I realized that my listening ability actually improved actually. Then I started started practicing for the repeat sentences and WFD. उसके बाद मेरे लिए रिपीट सेंटेंसेस और WFD जो है बहुत इजी हो गए. क्यों? क्योंकि मैंने अपने लिसनिंग स्किल को जो है काफी इंप्रूव कर लिया. नॉर्मली हम जिस चीज की हैबिट अपने दिमाग को डालते हैं वो वैसे ही बन जाता है. अगर मैंने डेली 100-200 लिसनिंग पॉडकास्ट सुने 2 to 3 और उसके बाद मैंने 100-200 जो है रिपीट सेंटेंसेस सुने डेली, तो मेरा ब्रेन जो है ऑटोमेटिकली वैसे ही काम करने लग गया. क्यों? क्योंकि मैंने अपनी लिसनिंग की स्किल को, लिसनिंग की एबिलिटी को इतना ज्यादा इंप्रूव कर लिया कि उसने वैसे ही काम करना शुरू कर दिया. दिस वॉज फॉर रिपीट सेंटेंस एंड WFD. After come the describe image. When I was reading this blog, I came to know about this template thing. As you all know, all are aware of this template that most institutes and all teachers, tutors provide to their student this template, that you just have to speak this template and add some words from that image and you are sorted. So I also learned one template from a very popular website. I downloaded that template PDF file and I started using it. When I was using that template for my for describing the image, every time I used to use that template, I used to get mumble. Firstly, I got very nervous that what to do, क्योंकि जब भी मैंने डिस्क्राइब इमेज बोलनी मैं नर्वस हो जाती थी टेम्पलेट के साथ. तब मैंने रियलाइज की एक बात कि जब मैं टेम्पलेट यूज करती हूँ मेरे दिमाग में 2 प्रेशर होते हैं. पहला कि मुझे रिकॉल करनी होती है टेम्पलेट्स की लाइन. उसके बाद मुझे ये भी देखना है कि उस पिक्चर में है क्या, मुझे वो वर्ड्स भी कीवर्ड्स या क्या मैक्सिमम है क्या मिनिमम है, मतलब जो भी कंटेंट है उस इमेज का वो भी ऐड करना है. तो वो मेरे दिमाग में 2 प्रेशर क्रिएट कर देता था, जिसकी वजह से मेरी फ्लुएंसी डाउन होती जा रही थी और जो मैं बार बार जो है मम्बल करी जा रही थी, मैं बार बार पॉजेस ली जा रही थी. देन मैंने रियलाइज की कि हमारे पास पीटी की ऐसा कोई गाइडलाइन ही नहीं है कि हमें जो है टेम्पलेट यूज करना मैंडेटरी है. तो मैंने सोचा कि I will speak naturally. Whatever I'm seeing, I will speak that naturally only, the content which I'm seeing on the image. For that, I used to describe all the things that are around me. I still remember when I was going for the exam, जब मैं exam देने जा रही थी, I was sitting to get my identification check for that picture and my palm testing. I started describing the center. मैंने center को describe करना शुरू कर दिया. जस्ट टू पम्प माई सेल्फ अप, ताकि मैं जब भी इमेज अब जो स्क्रीन पे जाके देखूं मुझे दिक्कत ना आए. सिमिलरली मैं क्या करती थी पहले जब मैं प्रैक्टिस कर रही होती थी या नॉर्मली जहीं मैं जा रही हूँ या कोई भी काम कर रही हूँ, मेरे सामने कोई भी चीज आती थी मैं उसको डिस्क्राइब करना शुरू कर देती थी. उससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ कि जब मेरे सामने बार चार्ट आया या पाई चार्ट कोई भी इमेज आए मैं इजीली उसको डिस्क्राइब कर लेती थी और उसको 40 सेकेंड्स में इजीली बोल लेती थी मैं. चाहे मैं उसमें मैंने कलर्स भी इंक्लूड किए कुछ इमेजेस में कि इजीली कलर्स भी बोल सकते हैं. लेकिन हाँ ये था कि मैं कनेक्टर्स यूज करती थी, क्योंकि हम आईएलटीएस में जो है हमें स्पीकिंग में हम कनेक्टर्स यूज करते हैं, राइटिंग में सेम. मैंने जो है पीटी में भी सोचा कि जो कनेक्टर थिंग है वो ऑटोमेटिकली मुझे काफी हेल्प करेगा, उससे मुझे पॉजेस के चांसेस भी कम होंगे. तो मोर ओवर, फर्दर मोर, इन एडिशन टू दिस, बिसाइड्स ऑल दैट, ये कनेक्टर्स जो थे मैंने यूज किए डिस्क्राइब इमेज के लिए. Then comes the retell lecture. For retell lecture also I didn't use any template. What I used to do was, firstly I used to listen to the retell lecture. Normally बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही retell lecture जो है स्टार्ट होता है, अगर हम स्टार्टिंग से उसको लिखना शुरू कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जितनी लाइन में हम पहली लाइन लिख रहे हैं उतनी देर में जो स्पीकर है वो 3rd और 4th लाइन में पहुंच जाता था. मेरे साथ भी ऐसा हुआ जब मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू करी, मेरे साथ भी सेम यही प्रॉब्लम आई कि मैं जब पहली लाइन लिखनी शुरू करती थी तो इतनी देर में वो स्पीकर 3rd और 4th लाइन में पहुंच जाता था, मुझे पता ही नहीं लगता था कि लेक्चर है क्या.
Then I decided to just listen to the lecture and just note down the keywords. मैं क्या करती थी, मैं लेक्चर मैंने सुनना स्टार्ट किया, देखा कि लेक्चर है किसके बारे में, और फिर मैं उसको क्या करती थी, अपनी लैंग्वेज में इंटरप्रेट कर देती थी. क्योंकि बेसिकली अगर हम रीटा लेक्चर का आइडिया देखा जाए तो आइडिया उसका यही है कि हमें एक टीचर ने एक लेक्चर दिया है, अब हमें क्या करना है कि हमारा कोई फ्रेंड एब्सेंट है, हमें उसको जस्ट समझाना है. तो नॉर्मली अगर हम अपने फ्रेंड को कोई लेक्चर समझाते हैं, हम नॉर्मली या कभी भी टेम्पलेट नहीं यूज करते, तो सेम हम क्यों फिर रीटा लेक्चर में, पीटी में क्यों हम यूज करें टेम्पलेट. हम सुने, उसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकालें और फिर उसको अपनी लैंग्वेज में इंटरप्रेट कर दें. एग्जाम में भी मैंने ऐसे किया. मेरे पास मुझे याद है, मुझे 3 रीटा लेक्चर आए थे जो मैंने कभी नहीं किए थे. वैसे मैंने पीटी स्टडी ऐप यूनी के मोस्टली सारे रीटा लेक्चर एक बार प्रैक्टिस किए हुए थे, लेकिन मुझे कोई भी रिपीटेड नहीं आया. कोई मटेरियल, कोई भी रीटा लेक्चर मुझे रिपीटेड नहीं आया. ऑल्सो मुझे ना कोई रिपीट सेंटेंस रिपीट आया था, ना मुझे कोई डिस्क्राइब इमेज. ओनली वन आई गॉट रिपीटेड, दैट वाज अबाउट द गार्बेज पैच, Japan and Hawaii, the globe, the image of that globe, and it consists of different countries. I don't remember the exact country's name. And for read aloud also, I didn't get the repeated read aloud. No, I didn't know. All were new for me. So रीटा लेक्चर मैंने तीनों के तीनों बिना टेम्पलेट के जो है अपनी लैंग्वेज में जो है मैंने इंटरप्रेट करके बोले. एंड देन कम द आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस. आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस जो थे नॉर्मली दे आर द जनरल नॉलेज क्वेश्चन. ऑल्दो आई गो थ्रू दैट ऐप यूनी आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, मैं उनके थ्रू गई, मैंने वही क्वेश्चंस पढ़े थे, एंड आई गॉट 1 or 2 रिपीटेड फ्रॉम दैट ऐप यूनी ओनली, बट दे वर वेरी इजी, द वंस दैट आई गॉट इन द एग्जाम, and I still, that's why, and I managed to get 19 speaking. After that come the writing section, summarized written text. The summarized written text has a very good distribution, marks distribution of around 27 or 28. I don't remember the exact distribution now, but I will post that one picture of that marks distribution chart at the end of this video. Okay, it will be helpful for you all. So what I did for summarized written text, I started writing the summarized written text in the formal language, that in the passive language actually, and or connected it through the help of the connectors, that the way we write in the IELTS. And for the essay also, I didn't prepare for any template for the essay. At the till the last moment, I didn't did any practice for the essay. क्यों? Because actually एक तो वो 11 नंबर ही सिर्फ जो है हमें contribute करते हैं essay. तो आप चाहे उसको टेम्पलेट के साथ लिखो, चाहे आपको विदाउट टेम्पलेट लिखो, क्योंकि कंटेंट के उसमें है तो 3 ही नंबर. अगर हम उसको टेम्पलेट के साथ लिखते हैं तो ये है कि हमें स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन के और चीजों के नंबर मिल जाते हैं, लेकिन कंटेंट के नहीं मिलते. अगर मैं बिना उसके, अगर आप इजिली ऐसे जो है बिना टेम्पलेट के लिख सकते हो, तो आई विल एडवाइस यू टू राइट विदाउट टेम्पलेट. बट इफ यू कांट, if you don't feel yourself so much confident that you can't write a essay without template, then go for the template, I will say. But in my case, I got the essay of the law changing the human behavior, and I wrote that essay without that template. But I followed that IELTS format. As it was an opinion based essay, I followed the structure of that IELTS opinion based essays. That firstly the introduction, and then BP1, that is body paragraph 1, body paragraph 2, and then the conclusion. And in the introduction, I gave the reasons that I was supporting for that essay, that the law will change the behavior or not. That I have given the introduction in my introduction part. The same structure that we used to follow for the IELTS writing actually. Then come the reading section. For reading, fill in the blanks. Reading, writing, fill in the blanks, I practiced from PT Study and App Uni. I completed all the reading, fill in the blanks, reading, writing, fill in blanks on both websites. But I didn't get a single one repeated in my exam. You won't believe. I have done around 300 to 400 fill in the blanks for reading, writing, and also for the reading. Because PT Study consists of 298, reading, writing, fill in the blanks, also that App Uni, it also consists around 200 to 300. But I didn't get a single one repeated in my exam. So after that reorder,
For reorder, I used to do what? Sorry, firstly, I was talking about reading, writing, filling the blanks, and reading. What I used to do was, I used to read the text first without filling the blanks. And then I used to know about the context of the paragraph. मैं पहले क्या करती थी, रीड कर लेती थी फटाफट पैराग्राफ को, और फिर मैंने उसकी दिमाग में अपने हिंदी एक बनाई कि ये जो मेरा पैराग्राफ है किसके बारे में. फिर जो है मैंने एक एक करके अपने फिल इन द ब्लैंक्स जो है फिल करने शुरू कर दिए. नॉर्मली जो है इसमें ग्रामर रूल्स चलते हैं, बट ऑल्दो आई एम अवेयर ऑफ ग्रामर, बट मैंने ग्रामर रूल्स जो है एज सच मैंने उस टाइम पे अप्लाई नहीं किए एग्जाम में, ना मैं प्रैक्टिस के टाइम पे करती थी. मैं पहले क्या करती थी, मैं हमेशा पैसेज रीड करती थी, और पैसेज रीड करने के बाद फिर मैं फिल इन द ब्लैंक्स जो है फिल करती थी, क्योंकि मुझे थोड़ा आइडिया हो जाता था कि ये फिल इन द ब्लैंक्स जो पैराग्राफ है ये है किसके बारे में. उसके बाद रीऑर्डर में भी सेम, पहले मैं इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट फाइंड आउट करती थी. उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट को हिंदी में बनाकर अपने दिमाग में देखती थी कि ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट हमें मतलब क्या किस बारे में है, और कौन सी जो लाइन है इसको सबसे बेस्ट कनेक्ट करेगी. एक्चुअली पेयर कौन सी लाइन जो है पेयर इसको बेस्ट करेगी. तो मैं ऐसे पेयर्स बनाती गई, और मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करती रही, और सेम जो है मैंने एग्जाम में भी किया. एग्जाम में भी मुझे कोई भी रीऑर्डर रिपीटेड नहीं आया जो मैंने पहले किए हुए थे, ना किसी प्रेडिक्शन फाइल में से कोई रिपीटेड आया. लेकिन स्टिल मैंने जो है वहां पे अपनी इसी स्ट्रैटेजी के थ्रू जो है मैंने मैनेज किया, और मैंने अपने दोनों रीऑर्डर सेव किए. उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं करके गई थी. क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा कम मार्क्स जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, ओनली अराउंड 5 to 6. वहां एग्जाम में मैंने जस्ट पहले क्वेश्चन पढ़ के उसके चारों ऑप्शंस पढ़े, स्किम किए. एक्चुअली मैंने ऑप्शंस पढ़ने के बाद पैराग्राफ पढ़ा, और मुझे जो बेस्ट लगा कि ये जो है इजीली, वैसे भी पीटी के नॉर्मली इजी ही होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आप इजीली कर लेते हो. जो बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा पढ़ने के बाद पैराग्राफ कि ये सबसे बेस्ट रहेगा, मतलब यही इसको सूट करता है, मैंने उसी पे क्लिक किया. और एमसीक्यू जो मल्टीपल आंसर्स में मैंने, एज यू ऑल नो अवेयर दैट दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव मार्किंग, सो आई डिडंट टेक द रिस्क ऑफ टेकिंग वन मोर देन 2. आई जस्ट ओनली टेक द वन which I found that the suitable answer for that paragraph. And after that, after the reading, the last section I got was listening. Before that, the 10 minutes break they asked for that 10-minute break, and that you all know that is optional. You can take that, or if you don't want, you can't take. I didn't take that 10 minutes break either. I started the listening section. Firstly, I got summarized spoken text. The strategies that I follow for the retail lecture: to listen first and only note down the important word that you find that you can't remember. जो आपको लगता है कि आप इतनी देर तक याद नहीं करोगे, याद नहीं रख पाओगे, सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को लिखो. मैंने सेम स्ट्रैटेजी वही फॉलो करी थी समराइज स्पोकन टेक्स्ट के लिए. उसमें भी सेम, मैंने कोई टेम्पलेट यूज नहीं किया. मैंने सुना ध्यान से जो स्पीकर ने बोला, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे मैंने वो फटाफट लिखे, और फिर मैंने उसको अपनी लैंग्वेज में, अगेन पैसिव वॉइस में, मैंने फॉर्मली समराइज अपना स्पोकन टेक्स्ट लिखा. ऐसे ही मैं वेबसाइट पे प्रैक्टिस करती थी, वैसे ही मैंने एग्जाम में किया. आफ्टर दैट, हाईलाइटिंग इनकरेक्ट वर्ड्स एंड दीज हाईलाइटिंग इनकरेक्ट समरी, लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स, ऑल्सो जस्ट प्रैक्टिस. वो मैंने पीटी स्टडी से प्रैक्टिस की है, ऐप यूनी से ही प्रैक्टिस करी है मैंने ये सारी चीज़ें. और मैंने एग्जाम में जैसे ही वो लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक स्टार्ट होते थे, मैं ध्यान से सुनती थी, क्योंकि मैंने रिपीट सेंटेंसेस और WFD के टाइम पे मैंने अपनी लिसनिंग, एज मैंने पहले भी डिस्कस किया कि मैंने पॉडकास्ट सुनने से और मेरी काफ़ी लिसनिंग की एबिलिटी इंप्रूव हुई थी. तो मुझे कई नए वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन का भी पता लगा था जो मैं अवेयर नहीं थी पहले. तो मैंने इजीली जो है लिसनिंग के फिल इन द ब्लैंक्स जो है सॉल्व कर लिए इसी स्ट्रैटेजी के थ्रू. आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड ऑल. For the WFD also, I have used that same repeat sentences strategy only. That just brushed up my listening ability. That's it. And in the last, I will like to say that, guys, PT में स्कोर करना या कोई भी एग्जाम में स्कोर करना कोई मुश्किल काम नहीं है.
बिकॉज अगर हमारे अंदर विल है कि हम ये स्कोर कर सकते हैं, हमें इतना स्कोर करना है। मेरा टारगेट 80 था, मुझे था कि मुझे 80 या 81 तो लेना ही लेना है, मुझे 80 क्रॉस करना है, बट आई गॉट 84। बट अभी भी मुझे लगता है कि शायद मैं थोड़ा और करती तो मैं शायद 90 भी स्कोर कर लेती। मुझे है कि मैंने कहाँ पे मैं लैग करी होंगी, आई डोंट नो। तो मैं आप सबको भी यही कहूंगी कि एक टारगेट बनाओ कि हमें इतना स्कोर करना है और मेहनत करो। कोशिश करो कि नेचुरली बोलो, टेम्पलेट ना यूज करो। बिकॉज मुझे लगता है कि जब हम टेम्पलेट्स यूज करते हैं तो टेम्पलेट्स जो है हमें प्रेशर ही करते हैं, प्रेशर देते हैं कि एक तो टेम्पलेट्स की लाइंस रिकॉल करो, फिर जो आइडिया हमें बोलना है या हमें लिखना है वो कंटेंट भी उसमें ऐड करो। तो उससे क्या होता है कि मतलब एक क्योस की, एक डायलेमा की सिचुएशन हो जाती है। इससे बेटर यही है कि आप जितने नेचुरल रहोगे, जितने नेचुरल फ्लो में रहोगे, आप इजीली जो है अच्छा स्कोर कर सकते हो। रीड अलाउड में अगर मान लो आपको कोई वर्ड ऐसा है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, आप उसको स्किप मत करो। आप क्या करो, गूगल पे उस वर्ड को चेक करो, उसको सर्च करो और वहां पे जो है उसकी प्रोनाउंसिएशन देखो। और हो सके तो एक नोटबुक बनाओ, उसमें आप वो वाले वर्ड्स लिखो जो बहुत टफ है प्रोनाउंस करने में। और ऑल्सो जब आप रीडिंग कर रहे हो तो उस केस में भी आप वो वाले वर्ड्स जो है जो आपको लगता है उनका आपको मीनिंग नहीं पता, चाहे वो आंसर आपका करेक्ट ही क्यों ना हो, उन वर्ड्स की एक लिस्ट बना लो, उनको गूगल पे सर्च करके उनका मीनिंग लिखो। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपकी वोकैब इंक्रीज होएगी, दूसरा आपको नॉलेज मिलेगी, आपको पता लगेगा कि इस वर्ड का मीनिंग ये होता है। आपका इन फ्यूचर आपको कभी भी आप इजीली उन वर्ड्स को जो है अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हो। बाकी तो यही है कि अगर आपका टारगेट है, अगर आपको है कि मुझे इतना ये टारगेट अचीव करना है, तो आप मेहनत करोगे तो आप वो टारगेट इजीली अचीव कर सकते हो। बिकॉज वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। और बाकी that's all I want to say, and in the last I would like to say that thank you for watching my video, and I wish that every person who is watching this video get their desired score. And if you have any doubt, अगर आपके कोई भी PT से related doubt है तो I will be linking my Instagram account ID either in this video or in the description box. There you can DM me, or I will be linking my email ID too. If you have any doubt regarding the PT, then you can ask. And अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके।